graphite in that particular medium. Rho is the density of that particular mercury, and G is the gravity which is acting on that mercury. So we got a pressure as 0.76 multiplied by 13600 multiplied by 9.8. When we substituted, and this rho, this density was the density of that air in which Newton was doing experiment. So when he substituted the density of air and pressure inside this particular formula, what he got the value? He got the value as 279.9 meter per second. And what he said that if it is 279.9 meter per second and the actual value is 332 meter per second, so the difference between theoretical value and experimental value was 16%. The error was 16%. It was not considerable. So Laplace was the one who started working on it. And what he said, Laplace did not commented on anything on isothermal process. But what he said, what Laplace said, what was the assumption of a Laplace? Constant. It is an Adiabatic. Heat is constant. Yeah, he said that the process is an adiabatic process. Someone said that, ma'am, it is an adiabatic process. Yes. So assumption of Laplace was that it is an adiabatic process and heat in this particular process is constant. Means then everyone asks one question that if you are saying heat is constant, but when we compress something, when we pressurize something, heat is produced at the time. So he said whatever heat is produced at the time of compression, that particular heat is been lost in the time of rarefaction. So the process is so fast, the process is so rapid that overall you do not experience any kind of heat exchange in the medium. So that is what he considered that the process of transfer of a sound or propagation of a sound is an adiabatic process. This is how it started. Okay, and then he said he gave the formula between elasticity and pressure. E is equals to gamma P, where this gamma was your adiabatic ratio. Okay, and I defined the gamma as, this is gamma. It was the ratio of Cp by Cv, where Cp is, what was Cp? Anyone? Cp kya hai? Constant pressure. Specific heat, constant Yeah, pressure. it is Constant specific heat pressure. at constant pressure. Constant pressure. Okay, and this was specific heat at constant Constant volume. Constant volume. heat at constant pressure का मतलब क्या है वो समझो. जब हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस का, वो टाइम पे जब हम प्रेशर कांस्टेंट करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, वी से दैट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, वी से दैट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. So gamma is Cp by Cv, which is ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. And when he substituted E is equals to gamma P in the same formula, gamma P by rho, when he substituted the values of gamma P and rho, gamma का value is 1.41. ये कैसे आया? इसका discussion I am not going to do, because for that I need to explain you monoatomic, diatomic, triatomic gases, which I am not explaining now. It is there in your 12th standard. So this adiabatic ratio for that particular air he got as 1.41, and when he substituted the value, he got the value as 332.3 meter per second, which was same or which was similar to the one which was found in experimental values, which was found by experiment. Okay, so this is what was experienced, that whatever the Laplace correction was there, or whatever the Laplace said was a correct part, that the transfer of a sound is somewhere a adiabatic process. Clear with the part? Samjha yahan tak? This was the part which we have studied yesterday or day before yesterday. Yes. Now let's discuss about the specific heat in deep. थोड़ा स्पेसिफिक हीट के बारे में और जरा समझते हैं. इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इसके बारे में 10th स्टैंडर्ड में काफी डीप में पढ़ा हुआ है. 10th स्टैंडर्ड में आपने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा हुआ है. That the specific heat can be defined as, it is the quantity of heat required to raise the temperature of a unit mass of a gas by 1 Kelvin. By 1 degree Celsius. Or 1 degree Celsius. Okay. Like for example, let's take an example. See, हर मटेरियल का हीट होने का कैपेसिटी अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल if you are keeping two materials together. अब इसमें आपने इन दोनों को हीट करना स्टार्ट किया. You started giving the heat. Okay. Now क्या हो रहा है? इसको भी आपने लेटेस्ट से इसको भी आपने 14 जूल्स का हीट दिया, इसको भी आपने 14 जूल्स का हीट दिया हुआ है. दोनों को आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करना चालू किया. अब होगा क्या? ये वाला जो मटेरियल है, लेट्स से A एंड B, ये जो मटेरियल है, जब आपने इसको 14 जूल का हीट दिया,
इसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। और ये वाला जो मटेरियल है, इसको जब आपने 14 जूल का हीट दिया, सेम इसको भी जब आपने 14 जूल का हीट दिया, इसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा। इसका मतलब ये है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट में जब मैंने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, इसका टेम्परेचर फटाफट बढ़ता जा रहा है। मतलब ये ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, फटाफट टेम्परेचर बढ़ा रहा है। और ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये कंटिन्यूसली हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है और अपना टेम्परेचर बहुत स्लोली बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये कि इसको 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत है। सो इसके स्पेसिफिक हीट की अमाउंट ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? इसके स्पेसिफिक मतलब इसकी सहने की क्षमता बहुत अच्छी है। लाइफ में भी ऐसे लोग मिलते हैं हमको, दो तरह के लोग होते हैं, करेक्ट। एक इंसान कैसा होता है कि अगर आपने उसको कुछ बोल दिया तो उसको फटाक से उसका पारा है हो जाता है, वो एकदम दिमाग उसका खराब हो जाता है। और एक इंसान ऐसे होते हैं कि जिनको आप कुछ बोलते जाओ, उनका गुस्सा, मतलब अगर उनको गुस्सा आया भी तो बहुत स्लोली आता है। मतलब वो मोस्ट ऑफ द चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अरे Yes. 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 दिस इज दैट पर्सन जिसका स्पेसिफिक हीट इज हाई। मतलब आप बोल रहे हो, उसका पारा ही गर्म नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? बट एक टाइम के बाद एक लेवल होगा, उससे उसका थोड़ा सा गुस्सा आएगा। सो द मटेरियल जिसका टेम्परेचर जल्दी नहीं बढ़ता, उसका स्पेसिफिक हीट का वैल्यू ज्यादा होता है। कीप इट इन माइंड। ओके, सो स्पेसिफिक हीट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of a unit mass by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. किसी भी एक सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट लगता है, दैट हीट वी कंसिडर्ड एज द स्पेसिफिक हीट। इसके अलावा आपने एक और हीट पढ़ा था, किसी को याद है दूसरा हीट कौन सा था? एक और लैटेंट के बारे में। Latent heat of fusion. There were different parts. Latent heat of fusion, latent heat of vaporization. Vaporization. वेपर के टर्म्स में बात हो रहा है तो वेपराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो दैट वाज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो लेटेंट हीट के बारे में अगर आपको याद हो, लेटेंट हीट जो होता है वो बॉन्डिंग ब्रेकिंग से रिलेटेड होता है। जैसे कि आपको आइस का एग्जांपल दिया गया होगा व्हेन यू वर इन 10th स्टैंडर्ड, कि जब आप आइस को मेल्ट करते हो, व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट द आइस इनटू वाटर, होता क्या है नॉर्मली? आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। पहले अगर आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया तो ये वाटर बनता है, इट बिकम वाटर। ओके, बट इसका टेम्परेचर कितना होता है इस वाटर का भी? हाउ मच इज द टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टाइम पे जो भी हीट आप देते हो, ये पर्टिकुलर टाइम पे आप जो भी हीट देते हो, वो सारी की सारी हीट जो है वो बॉन्डिंग तोड़ने में काम आती है। पहले बॉन्डिंग टूटती है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है। सो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए जो हीट लगती है, सॉलिड था, सॉलिड से बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक हुई है, ब्रेक हुई है और वो लिक्विड बना है। सो ये टाइम पे जो हीट लगती है दैट इज योर लेटेंट हीट। और उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये टाइम पे जो हीट लगती है दैट इज योर Specific heat. स्पेसिफिक। ठीक है, जहां पे भी आपका बॉन्डिंग वीक होने का या बॉन्डिंग ब्रेक होने का बात आता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ लेटेंट हीट। और जहां पे आपका टेम्परेचर चेंज होने की बात आती है, दैट इज वेयर वी कंसीडर एज अ स्पेसिफिक हीट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes. समझ में आ रहा है? ओके, सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द स्पेसिफिक हीट। जरा और डिस्कस करते हैं। ओके, फिलहाल के लिए स्पेसिफिक हीट इतना ही काफी है। लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। Okay. Now, just now we studied that the correct formula for velocity or speed of a sound was given by V is equals to gamma p by rho. Correct? It was V is equals to gamma p by rho. Now what? Let's move ahead. If I substitute for an ideal gas, कुछ नए terms बताने जा रही हूँ। जैसे आपको मैंने बोला कि 1.41 कैसे आया, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट नाउ। एट द एंड कभी अगर मौका मिला तो विल गो हेड विथ, थोड़ा सा उसका डिस्कस करूंगी, बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको नहीं समझेगा उतना। हाँ, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैस के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर आपको मोल्स वाला चैप्टर आपके 9th स्टैंडर्ड का याद हो तो उसमें आप डायएटॉमिक गैसेस लेते थे, N2, H2, O2, ये आपके डायएटॉमिक गैसेस हैं।
जिसमें दो एटम्स हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं. मोनोएटॉमिक इज सिंगल वन, नाम ही है मोनोएटॉमिक, जैसे हीलियम हो गया. हीलियम. एंड ट्राइएटॉमिक में 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं. ठीक है. सो जो गैमा होता है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना बता रही हूँ, ये जो गैमा होता है, ये जो एडियाबेटिक रेशियो है गैमा, ये मोनोएटॉमिक, आप मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहे हो, डायएटॉमिक गैस की बात कर रहे हो, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैस की बात कर रहे हो, उन पे डिपेंड करता है. फिलहाल सिर्फ इतना समझ जाओ. दिस गैमा, दिस एडियाबेटिक रेशियो डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी गैस के बारे में बात कर रहे हो, which gas you are talking about. So this adiabatic ratio, it depends on whether you are talking about diatomic, whether you are talking about monoatomic gas or you are talking about polyatomic gas. तो ये गैमा आप इसके हेल्प से निकालते हो. कैसे निकालते हैं, कैसे आएगा, वो सारी चीजें हम 12th में पढ़ेंगे. Okay, so we discussed V is equals to under root of gamma P by rho. This was the formula given by Laplace. पहला इफेक्ट देखते हैं कि प्रेशर की वजह से, इफेक्ट ऑफ pressure on velocity of sound. साउंड की वेलोसिटी पे प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है? So according to Laplace formula, V is equals to gamma P by rho. This is the formula. अब आपको ऐसा लग रहा होगा देख के कि मैम velocity of a sound and this P, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. V is directly proportional to under root of P. Correct? Means Yes. there is an effect pressure on the velocity of sound. है कि नहीं? Yes. है या ना? Yes. मैं जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? V is directly proportional to under root of P. अगर मैं इसको और इसको कांस्टेंट ले लूँ, गैमा तो कांस्टेंट होता ही है किसी एक गैस के लिए. अगर मैं डेंसिटी को भी कांस्टेंट ले लूँ by any process, if I take the density as constant, so according to you, you can see that velocity is directly proportional to under root of P. ये करेक्ट है या नहीं, इसको हम जरा आगे जाके फाइंड आउट करते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अहेड कि इफ इट इज करेक्ट और नॉट. जरा इसको आगे देखते हैं गैसेस के ऊपर. नाउ लेट्स से जिस गैस में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिंस आप लोग अभी छोटे हो तो इसलिए लेट्स टेक एन आइडियल गैस. अभी क्या होता है आइडियल गैस, इसके बारे में समझाती हूँ. लेट्स टेक आइडियल गैस. सी, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, व्हेन यू डू, यू नो कि फिजिक्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. फिजिक्स हमेशा दो तरीके से चलता है. एक होता है थियोरेटिकल, जो थियरी बनती है, एक होता है एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, ये दो तरीके होते हैं फिजिक्स के. जब इन दोनों के रिजल्ट्स मैच हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वी से दैट कि ओके यार व्हाटएवर थ्योरी आपने जो बनाई है, जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो वो करेक्ट है. अब होता ये है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हो या जब आप थ्योरी बनाते हो, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स जो आपको आपके एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली होने नहीं देते. क्यों? क्योंकि आपका ये जो अर्थ है, ये जो आपका यूनिवर्स है, वो इतना सीधा साधा नहीं है. मतलब आपको ऐसा देख के लग रहा है कि इट इज वेरी कूल, इट इज वेरी गुड. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. आज तक इतना फिजिक्स पढ़ने वाले आ गए, बट आज तक कोई यूनिवर्स को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया. सो दिस यूनिवर्स इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड. और ये कॉम्प्लिकेशंस हमको हमारे एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हमको जो प्रॉब्लम्स आती है, अगर वो इग्नोरेबल है कि ओके वी कैन इग्नोर दैट, लेट्स इग्नोर इट फॉर सम टाइम. पहले थोड़ा सा बोलते ना, जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हो तो जो प्रॉब्लम्स आपको आती है, आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम्स थोड़ा निग्लेक्ट करके किसी एक रिजल्ट तक तो पहुंचे. लेट्स मूव टू वन रिजल्ट. उसके बाद देखते हैं कि वो प्रॉब्लम डालने से मेरे रिजल्ट में कितना चेंजेस आ सकता है. कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. आया ना? Yes. Yes. ओके. सो व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो प्रॉब्लम्स आपको आती है वो आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रॉब्लमैटिक होती है. तो आप क्या बोलते हो कि चलो इन प्रॉब्लम्स को जरा साइड करते हैं, लेट्स टेक इट ऑन द साइड, और किसी एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं. उसके बाद देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स से मेरे रिजल्ट में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, वो हम बाद में देखेंगे. सो नॉर्मली क्या किया जाता है, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो आइडियल केसेस लेके किया जाता है. आइडियल मतलब जो रियल वर्ल्ड में
नहीं होते। इसमें प्रॉब्लम्स को थोड़ा साइड में रख दिया जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको, प्रॉब्लम्स को थोड़ा साइड में रख के आइडियली एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो वैसे ही जब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो दे टुक एन आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब वो गैसेस होते हैं जिनके अंदर जो प्रॉब्लम्स उनको रियल गैसेस में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैसेस, आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस। आपके ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देयर इज अ रियल गैस। रियल गैस मतलब अपना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह। सो उन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो रियल गैसेस हैं, जब इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया गया तो 2-3 प्रॉब्लम्स आई। जब उन 2-3 प्रॉब्लम को निग्लेक्ट किया गया तो बोला गया कि जब हम लोग इन प्रॉब्लम्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर निग्लेक्टिंग द प्रॉब्लम्स, व्हाट वी विल से कि जो गैस हम काम कर रहे हैं उसको हम आइडियल बोलेंगे। सो दे सेड दैट दिस गैस इज एन आइडियल गैस। कुछ समझ रहे हैं व्हाट इज सेड? समझा मैंने क्या बोला? Yes. जब वो एक्सपेरिमेंट Yes. कर रहे थे रियल गैस के साथ, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को निग्लेक्ट किया, कुछ इश्यूज को निग्लेक्ट किया, और उन्होंने क्या बोला कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट विद दिस पर्टिकुलर कंडीशंस। और जब उन्होंने उन कंडीशंस को निग्लेक्ट किया तो दे सेड कि ऐसी कंडीशंस तो कभी निग्लेक्ट की नहीं जा सकती। तो ऑफ कोर्स अगर हम इन कंडीशंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो जो गैस होगी वो कौन सी गैस होगी? वो आइडियल गैस होगी। आइडियल गैस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे एक आइडियल पर्सन होता है ना, हम बोलते ना कि एक इंसान अच्छा है। अच्छा है इसका मतलब क्या? वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी गलती नहीं करता। इज इट पॉसिबल ऐसा कोई इंसान होगा कभी एग्जिस्ट कर सकता है? No. बट फिर भी हम क्या बोलते हैं कि ठीक है आइडियली वो अच्छा है। मतलब हम क्या करते हैं, उसकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं। बट एक परफेक्ट आइडियल पर्सन वी कैन नेवर से कि कोई एक परफेक्ट आइडियल पर्सन है। नॉट इवन अ गॉड इज एन आइडियल। कोई भी इस दुनिया में आइडियल नहीं है। आइडियल मीन्स परफेक्ट गैस। ओके, सो what they said ki, as I said ki in your world there is a real gas but they ignored some problems and उनको साइड करने के बाद they said कि ऐसा कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट तो कर नहीं सकता जिन जिन चीजों को हम इग्नोर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करते वक्त। तो लेट्स से दोस गैसेस एन आइडियल गैस। उन गैसेस को हम आइडियल गैसेस बोलेंगे। आइडियल गैसेस के लिए एक फॉर्मूला आता है, इसका प्रूफ भी आपको 12th स्टैंडर्ड में होगा। PV is equals to nRT। मैम This है is the formula for ideal gas। है आपको? Chemistry. Yes. अगर होगा केमिस्ट्री में होगा तो मुझे Chemistry. idea नहीं है। Of matter. States of matter. That's great. फिर तो मुझे पढ़ाने के लिए इजी होगा। So PV is equals to nRT is an equation for ideal gas where P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is gas constant, Gas T is Temperature. So Absolute. keep it in mind कि ideal gas does not exist in this world। होता ही नहीं ideal gas जैसा कुछ। Okay, but for our experiment we will consider an ideal gas। जब आप थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपका आइडियल गैस से उठा के रियल गैसेस पे ले आएंगे। वो लोग बोलेंगे लेट्स टेक इन रियल गैस नाउ, और जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो प्रॉब्लम्स वो इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज हाउ एक्सपेरिमेंट ऑलवेज गोज अहेड। ओके, नाउ लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर एन आइडियल गैस gamma p by rho। this rho is what? Rho is mass upon volume। density है ना? density is let's put it here। वेलोसिटी, मैं थोड़ा सा वेलोसिटी के v को थोड़ा सा, स्पीड के v को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रही हूँ। gamma p by m by v, I'm substituting it inside। okay, so your equation becomes, ये v ऊपर चला जाएगा। so velocity is equals to, speed is equals to, sorry, under root of gamma p by m। this is what the speed of sound you get when you substitute the density। okay, now let's move ahead। speed is equals to under root of gamma pv by m। और अभी हमने देखा for ideal gas pv is equals to nRT होता है। ठीक है, nRT is there। so let's substitute this nRT। speed is equals to gamma into n into RT by m। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करने वाला है आपको। क्या एक्सप्लेन करने वाला है जरा देखो। हेलो, मैं ऑडिबल? मैम स्क्रीन फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गए। नहीं दिख रहा है आपको? मैम बहुत लो मूव कर रहा है, अटक रहा है बीच। यस मिस। हाँ हो सकता है। फाइन फाइन, ठीक है चलो
Let's move ahead. PV is equals to nRT. This is what you're getting. Correct? ये हमने यहाँ substitute किया. This becomes V is equals to under root of gamma n RT by M. अब according to Boyle's law, according to Boyle's law, क्या law है? पढ़ा है? Yes. Temperature constant. Temperature is constant. Constant. Okay. जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, when the temperature is constant, we say that it is in Boyle's law. अब यहाँ पे ध्यान दो, number of mole is a constant value, R is a constant value, Yes. and temperature को भी हमने constant कर दिया, correct? Yes. So PV is equals to एक constant value आ जाएगा. P और V का कॉम्बिनेशन आपको एक constant value देगा, हाँ या ना? Yes. Yes. N is equals to nRT, N is constant, R is constant, T is constant. तो अगर ये पूरा constant है मतलब PV is equals to एक constant value आएगी, है ना? Yes. Correct. अब ये चीज ये समझाती है, जो भी गैस आइडियल होती है, the gases which are ideal in nature, ideal gases, अगर आप उनका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, if you maintain the temperature as constant, और उनके प्रेशर को चेंज करो, if you change the pressure, तो उनकी वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता. There is no change in the velocity, there is no change in the speed. Speed of sound. साउंड की स्पीड को अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, लिसन, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आप उसका प्रेशर को चेंज कर रहे हो, इफ यू आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट और उसके आप प्रेशर को चेंज कर रहे हो, तो अपने वॉल्यूम को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि उसके ओवरऑल स्पीड को, ओवरऑल फॉर्मूले को कोई फर्क, उसके कोई भी उसके स्पीड को उस मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू गैमा एन आरटी बाय एम. अब ये पार्ट देखो, ये पार्ट पूरा कांस्टेंट हो गया, गैमा इज अ कांस्टेंट पार्ट, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर, अगर मास को आपने कांस्टेंट रखा है तो मास इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो आपके स्पीड को अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के बाद अगर आप प्रेशर को चेंज करो, इफ यू चेंज दिस प्रेशर, तो वॉल्यूम इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा कि वापस यही कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी और आपके स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा. इट विल नॉट अफेक्ट द स्पीड. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? कुछ समझा? तो दिमाग में घुस रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss, repeat. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग. ये जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो. लुक एट दिस इक्वेशन. PV is equals to nRT. This is the equation. Your PV का combination depends on nRT. N is a constant value, R is a constant value, T is the temperature. अगर मैंने इसको Boyle's law के कंडीशन में लिया, मीन्स टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, इफ आई एम मेंटेनिंग द टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, ये पार्ट को अगर मैंने कांस्टेंट किया है, दिस पार्ट, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, Yes. है या ना? Yes. Yes. ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा है? कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है समझता है? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज फिक्स कांस्टेंट? होता है, चेंज नहीं होगा. फिक्स वैल्यू. Change नहीं होगा. और फिक्स टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, है ना? इसकी Yes. वैल्यू फिक्स हो गई मतलब एक्चुअल में किसकी वैल्यू फिक्स हो गई? PV. एक्चुअली में किसकी वैल्यू फिक्स हो गई? पीवी की वैल्यू फिक्स हो गई. अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है, मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रही हूँ, आई एम मेंटेनिंग द टेम्परेचर, बट मैं प्रेशर को चेंज कर रही हूँ. आई एम मेंटेनिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट एंड आई एम चेंजिंग द प्रेशर. मैं प्रेशर को चेंज कर रही हूँ. अब जरा ये बात ध्यान दो, अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो ये तो वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, ये तो फिक्स रहने वाला है, हाँ या ना? Yes. ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि ये एन आर और टी पे डिपेंड करता है. अब अगर मैंने इसको यहाँ से चेंज किया तो वॉल्यूम को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वापस उसको क्या आ जाए, सेम कौन सी वैल्यू आ जाए? Constant. कांस्टेंट, वही वाली जो पहले वैल्यू थी वही आ जाए. तो अगर आपने प्रेशर को चेंज किया तो वॉल्यूम अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि वापस यू विल गेट
you only. समझा रहा है? समझा क्या बोली मैं? मैम मैम आया ना? आपका हेलो बोलो। मैम ये Hello? आइडियली हाँ, होगा बोलो। ना? आइडियल गैसेस के लिए है। हाँ रियल yes, गैसेस में रियल पूरा में नहीं होगा। अप्रोच सेम नहीं है, बट ऑन एन एवरेज सेम होता है। ऑन एन एवरेज सेम होता है, कीप इट इन माइंड। रियल में भी ये चीज है कि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, रियल, यही तो मैं बोल रही हूँ, यही तो एक्सपेरिमेंट्स की खासियत है कि जब आप आइडियल के साथ करते हो तो जो वैल्यू, जो चीजें आपने अगर निग्लेक्ट की है, अगर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाती है तो बात अलग है। अगर वो हल्का फुल्का इफेक्ट दिखाती है तो नॉर्मली आइडियल और रियल फिर एक ही जैसा हो जाता है। तो अब रियल गैसेस के लिए भी ये चीज फॉलो होती है कि जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, व्हेन यू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, ऑन एन एवरेज आप प्रेशर चेंज करो, आपके स्पीड, साउंड की स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द स्पीड ऑफ अ साउंड। वो वॉल्यूम इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा। द वॉल्यूम विल बी एडजस्टेड सच दैट कि आप अगर प्रेशर चेंज कर रहे हो तो इट विल बी एडजस्टेड सच दैट द स्पीड ऑफ साउंड विल ऑन एन एवरेज विल रिमेन सेम। So it does not depend on the temperature. Sorry, it does not depend on the pressure if you keep the temperature to be constant. प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो वॉल्यूम को मेंटेन कर लेता है, एंड वापस आपको वही फिक्स वैल्यू मिल जाती है जो पहले थी, एंड अगेन यू गेट द सेम स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। कुछ समझ रहा है व्हाट आई सेड? आया ना? Yes. यस ये कंसेप्ट समझा? जो स्टेटमेंट मैंने पास किया वो समझा कि Yes. इफ यू मेंटेन द टेम्परेचर एंड यू आर चेंजिंग द प्रेशर, दो यू आर चेंजिंग द प्रेशर, फिर भी उसके स्पीड ऑफ साउंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस वैल्यू इज अ फिक्स वैल्यू। ये आप बढ़ा रहे हो तो ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन वापस आपको यही कांस्टेंट वैल्यू देगा। और ये स्पीड ऑफ साउंड दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, अकेले इस पे डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ पीवी। तो अगर आपने पी बढ़ाया है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, वी इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा कि आपको ओवरऑल जो फैक्टर है वो वापस वही फिक्स वैल्यू मिलेगी जो पहले थी, एंड द स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। समझा कुछ? Yes. कुछ समझा? Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes. रिजल्ट है। लेट मी टेल यू, आई थिंक डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आई एम, उन्होंने काफी घुमा फिरा के क्वेश्चन बोला था और बीच में उन्होंने बोल दिया था कि आई एम मेंटेनिंग द टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, एंड द आंसर वाज, इट वाज फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम। आई डोंट रिमेंबर विच ईयर, कुछ मुझे याद नहीं है फिलहाल, बट किसी एक एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत बड़े एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया था बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। और वो एक छोटा सा स्टेटमेंट, मेंटेनिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, से लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके रॉन्ग आंसर स्टिक किया था, एंड द कंक्लूजन वाज, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज होने के बाद वॉल्यूम ऐसे एडजस्ट हो जाता है कि PV again gives you the same value, and if temperature is constant, there is no change in the speed of sound. Hope you understand what I'm trying to say. समझ रहा है? आया ना? Yes. यस ma'am. Okay. So this was the conclusion that agar what is the effect of a pressure on the pressure on the speed of sound. So it is observed that agar if temperature, keep in mind the condition important है. If temperature is constant and we are changing the pressure, there will be no change in the speed of sound air. Okay. So keep it in mind. See, ideal gases, I'm saying कि ideal gases and real gases are quite different. But on an average जब experiments किए गए तो ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता डिफरेंस करने के, चेंजेस आप लग जाते कि आइडियल गैसेस और रियल गैसेस में क्या बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, बट जब उनका अप्रोच देखोगे, रियल गैसेस के जो जिन चीजों को हमने निग्लेक्ट किया, जब आप उनको इन्वॉल्व करके उनके अप्रोचेस देखोगे तो कोई खास बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट स्टिल मिलेगा। बट आप जब डीप स्टडी करते हो तो आप रियल गैसेस को कंसिडर करना स्टार्ट करते हो। अभी आप छोटे हो इसलिए फिलहाल वी कैन handle it. Okay, so let's move ahead with the next factor. Speed of sound means effect on speed of sound. Effect on speed of sound by Ma'am, temperature. screen freeze. जो लिख रही हो वो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा है अब दिख रहा है? मैम अभी दिख रहा है। दिख रहा है। Okay. Yes. ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन, let's move ahead. Now next we are going to discuss pressure का चेंजेस। समझे सबको? प्रेशर वाला पार्ट सबको क्लियर है? Yes. यस Yes. आगे बढ़ूं? आगे Yes. बढ़ूं?
Yes, ma'am. ओके लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. नाउ अभी हमने फॉर्मूला देखा, PV is equals to nRT, NRT. speed of sound is given by under root of gamma PV by m, that is equals to under root of gamma RT. If I take n is equals to 1 mole, 1 मोल पे बात कर रही हूँ. सो gamma RT by m सिंपल दिख रहा है कि gamma your speed of sound is directly proportional under root of t. We can see here टेम्परेचर पे पूरा इफेक्ट है इसका. ओके सो जरा आगे बढ़ते हैं. लेट T नॉट बी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में T नॉट विल बी योर हाउ मच? व्हाट इज T नॉट? 273. 1 Kelvin. ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड. V naught is equals to, V naught is the speed of sound at absolute temperature and T naught is the absolute temperature. So your equation becomes gamma RT naught by m. Let V be the sound, V be the speed of sound. Let V be the speed of sound at any temperature T. किसी एक टेम्परेचर T पे V स्पीड ऑफ साउंड है. So V is equals to gamma RT by m. This is equation number 1. This is equation number. अब ये जो T होगा, ये वाला जो any T बोला है, वो 273 प्लस समथिंग होगा. मानते हो? Yes, I am yes. saying this was at absolute temperature. ये जो नया टेम्परेचर ले रही हूँ, let us say it is 273. Let us say it is 373. तो T अगर मैं 373 बोल रही हूँ तो एक्चुअली में ये क्या हुआ? 273 प्लस 100. 273 plus. Yes. Yes. तो ये जो T होगा, ये जो नया वाला T है, जिस टेम्परेचर पे मैं जो नेक्स्ट टेम्परेचर एब्सोल्यूट वाला तो ये है, जो नेक्स्ट टेम्परेचर पे मैं किसी एक टेम्परेचर पे बात कर रही हूँ, वो 273 प्लस कुछ तो होगा समथिंग, और वो कुछ को मैं नाम दे रही हूँ, लेट्स से दैट एज स्मॉल t. समझा मैंने ये स्मॉल t क्या लिया है? दिस इज नॉट टाइम, हाँ, कीप इट इन माइंड. दिस इज 273 प्लस समथिंग. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं बेसिकली मेरे पास 5 चॉकलेट है, सामने वाले के पास 8 चॉकलेट, आप ऐसे बोलते हो ना 5 प्लस 3, 5 है प्लस 3 है, है ना? तो वैसे ही व्हेन आई एम सेइंग Hello, दैट Miss Screen जो is नेक्स्ट freeze. जो भी टेम्परेचर No, ma'am. No. screen is not No, ma'am, freezed. no. I am not No. writing something. Screen is not freezed. मैंने पेन हटा लिया उस पे से खाली. तुम लोग वो सारी चीजों पे स्क्रीन फ्रीजिंग होगा तो सब लोग एक साथ बोलोगे ना. स्क्रीन फ्रीज नहीं हुआ है, फोकस करो जो समझा रही हूँ उस पे. If I am saying I am working at the temperature 373, हिमांगी स्क्रीन फ्रीज नहीं हुआ है, फ्रीज नहीं हुआ है. आई एम राइटिंग, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है उस पे, मैंने वो पेज वैसे छोड़ दिया है. मिस आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी, अभी अभी आ रही है. बाकी सबको आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके फाइन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट लेट्स से आई एम वर्किंग एट 373. तो वो नया टेम्परेचर जो 373 है वो एक्चुअली में क्या है? 273 प्लस 100, मतलब 273 प्लस समथिंग हमेशा होता है एक टेम्परेचर, नया टेम्परेचर. तो वो जो समथिंग है, दैट समथिंग आई एम सेइंग एट स्मॉल t, उसको स्मॉल t से रिप्रेजेंट करती हूँ. समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? समझा व्हाट आई सेड? Yes. Okay, let's move ahead. So let t is equals to 273 plus small t. This small t can be anything. अगर 373 पे निकाल रही हूँ तो this small t will be 100. 473 पे निकाल रही हूँ तो this small t will be 200. So this is that temperature जो 273 के ऊपर जितना भी अमाउंट है, ठीक है? So let's substitute it. V is equals to under root of gamma r 273 plus t divided by m. इक्वेशन समझा? ये इक्वेशन समझा सबको? Yes. Yes. बाकी गर्ल्स आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, समझ miss. रहा है Yes, 2-3 लोगों को. ओके,
So V equals to gamma R 273 plus T by M. हमने पीछे नंबर 1 देखा था at absolute temperature gamma R absolute temperature कितना होता है 273, तो हम substituting that 273 by M. So V is equals to under root of नंबर को आगे रखती हूँ gamma R by M. ये ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? Screen is freeze, ma'am. Ma'am, screen Yes, ये ma'am. gamma okay No, okay ma'am. okay No, wait. no. दिख रहा है अभी दिख रहा है अभी आ गई। अभी देखिए। ठीक है? ब्लर Blur है बहुत बार. ब्लर है। अब ठीक है? विजिबल है Yes, yes. हाँ हाँ अब आ गई। मैम विजिबल है क्लियर है मैम ओके फाइन फाइन। ये समझा क्या किया मैंने? गैमा आर टी नॉट था, टी नॉट की वैल्यू डाल दी। टी नॉट इज योर 273 केल्विन। Yes. ठीक है? सो लेट्स मूव अहेड। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, डिवाइडिंग थर्ड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट था ना, फर्स्ट में मैंने 273 सब्स्टिट्यूट किया है। सो डिवाइडिंग दिस थर्ड इक्वेशन बाय let's say it 4, dividing third equation by fourth equation, so this will be V by V naught is equals to, ऊपर आएगा gamma R 273 plus T divided by M, the whole divide by gamma R into 273 by M. This got cancelled, this got cancelled. You got the equation as 273 V by V plus naught. T upon 273. upon 273 yes 273 plus T upon 273. 273. ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. Now let's move ahead. V by V naught is equals to 273 plus T by 273 the whole raised to half. रूट का मतलब हाफ होता है। Yes. Yes. अब यहाँ पे मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करने वाली हूँ which is called as binomial expansion. Using binomial expansion. This you will study in mathematics. Binomial expansion क्या होता है? फिलहाल के लिए समझा Miss देती हूँ कि इसका मतलब क्या है binomial expansion का। मिस बोलो स्क्रीन बार बार ब्रेक बोलो। हो रही है। ब्रेक हो समझ रही आ है? रहा है मिस पर Yes. समझ आ Yes. रहा है। हो रही है मैं एक ओके समझ आ रहा है पर अभी ठीक है? अभी ठीक है? Yes. 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 ठीक है सुनो सुनो। ब्रेक हो रहा ओके बाइनोमियल एक्सपांशन का मतलब क्या है? ये जो आप फॉर्मूलाज पढ़ते हो ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब, ये जो फॉर्मूलाज आपने पढ़ा है अभी तक में, वो सारे फॉर्मूलाज बाइनोमियल एक्सपांशन के हेल्प से बनाए जाते हैं। मतलब रेज टू पावर को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज किया जाता है। अभी वो कैसे बनाए जाते हैं उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि अगेन यू आर गोइंग टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर थिंग इन मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स में इस पे पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हो। ओके सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि बाइनोमियल एक्सपांशन होता क्या है। जो आपने जितने भी आज तक क्यूब के फॉर्मूलाज, स्क्वायर के फॉर्मूलाज पढ़े हैं, आगे जाके आप फोर्थ का फॉर्म मतलब a प्लस बी द होल रेज टू 4, a प्लस बी द होल रेज टू 5, ऐसे फॉर्मूलाज भी आप सॉल्व करोगे खुद, तो वो सारे फॉर्मूलाज इसके हेल्प से सॉल्व करवाए जाते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन के हेल्प से। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपांशन ओवर हियर, क्योंकि ये भी रेज टू हाफ है। सो इस रेज टू हाफ को सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प इन बाइनोमियल एक्सपांशन। और आफ्टर अप्लाइंग बाइनोमियल एक्सपांशन माय फॉर्मूला बिकम्स v by v naught is equals to 1 plus half t by 273. This is what you get after applying binomial formula. V by v naught is equals to 1 plus half into 273. So this becomes v by v naught is equals to 1 plus t by 2 into 273 is 546. Yes. 546. यहाँ तक सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? बाइनोमियल एक्सपेंशन कहाँ यूज आता है वो समझा आपको?
ये Yes. यहाँ से यहाँ कैसा जंप हुआ मैं वो नहीं समझा रही हूँ फिलहाल, आपको नहीं समझेगा इसलिए नहीं समझा रही, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे बहुत सी चीजें जो आपको नहीं पढ़ाई गई है उन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आपको अभी नहीं सिखाया गया है। मैम स्क्रीन फ्रीज। इसलिए मैंने freeze है, सिर्फ मैम। समझा दिया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है। मैम स्क्रीन फ्रीज। नहीं मैंने कुछ किया नहीं आपको। बाइनोमियल एक्सपेंशन, लिसन, मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ उस पे, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। आपको ये फॉर्मूला और ये मेरी उंगली दिख रही है आपको? नो मैम, नो Can you see my finger? अभी दिख रही है। यस अभी दिख रही है। हाँ, अभी अभी देखो। अभी दिख आपको आई थिंक इट्स देयर इंटरनेट फ्लक्चुएशन, डोंट वरी अबाउट इट। आपको वो फॉर्मूला दिख रहा है आपके सामने जो बोला, यस Yes. जो फॉर्मूला मैंने बोला वो दिख रहा है ना, दैट्स ऑल। Yes. Yes. यहाँ से यहाँ तक जंप करने का, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। यहाँ से यहाँ कैसे जंप हुआ मैं उसको आपको फॉर्मूले से सॉल्व करके नहीं दिखा रही, तो क्योंकि आपको उसको समझने के लिए मैथमेटिक्स का कुछ और पार्ट भी चाहिए जो आपको नहीं आया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज आपने कहाँ पे किया है। जब आपने बचपन में a+b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो इसी के हेल्प से आता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के हेल्प से आता है। ओके, सो बाय यूजिंग दैट एक्सपेंशन ओनली रेज टू हाफ को मैंने यहाँ पर एक्सपांड किया है और आई गॉट दिस, इसको एक्सपांड किया है मैंने, एंड आफ्टर एक्सपांडिंग दिस इज व्हाट आई गेट। यहाँ तक सबको क्लियर है व्हाट आई डू? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो No. No. आगे बढ़ू, थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट बाकी है, सिर्फ वो करना है। एक बार आपको पूरा डेरिवेशन एक बार और गो करवा देती हूँ, फिर वी विल बाइंड। 5 मिनट्स का काम। ओके, लेट्स मूव अहेड। v इज इक्वल्स टू v नॉट को यहाँ भेजते हैं 1 प्लस t बाय 546, ये v नॉट अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस v नॉट इंटू टी बाय 540। मिस कुछ Yes, दिख ma'am, नहीं इसमें रहा है, freeze फ्रीज हो गई नहीं है। दिख रहा है? हाँ मिस अभी दिख रहा है। ओके, एक मिनट रुको। मैम आपका नेटवर्क शायद बहुत वीक है, दिखा हाँ मैम बहुत वीक। दिख, अभी दिखा? यस Yes. यस मैंने ये v नॉट को यहाँ भेज दिया। v इज इक्वल्स टू v नॉट 1 प्लस टी बाय 546, v नॉट अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तक है ठीक है? Yes, ma'am. समझो. यस अभी वेलोसिटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमको एक्सपेरिमेंटली कितना मिला था? हाउ मच इट वाज? 332। 332. और 1 बाय, अगर आप यहाँ पे 332 डाल दो, 332 डिवाइड बाय 546 इनटू टी। सो ये आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन एज, आपको एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा व्हिच इज द लास्ट इक्वेशन फॉर टुडे। v is equals to 332 plus 332 by 546 is 0.61 into t। ये समझा? यस Yes. कैसे आया? Yes. मिस नहीं एक बार फिर से बताओ, फिर से एक बार समझाओ। Wait. v is equals to 332. v naught was absolute speed of sound at 0 degree Celsius. Speed of sound at 0 degree Celsius is 332 meter per second. This is v naught again, 332 multiplied by time divided by 546. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. है ना? इन दोनों को डिवाइड किया तो आपको 0.61 आता है। हाँ भाई समझ गया। इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो 0.61 आता है। सो आपका इक्वेशन बन जाएगा 332 प्लस 0.61 इंटू टी। ठीक है, समझा? यस 332 plus 0.61 into t. So this is the final speed of sound. 332 plus 0.61 into t. ठीक है? This equation explains you कि अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो, if you increase the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस डाल दो, if you put it 1 डिग्री सेल्सियस over here, so you'll get the speed as 332 plus 0.61। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस के लिए आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.6 वैल्यू से बढ़ता जाता है।
0 पे स्पीड ऑफ साउंड इज 332। अगर आपने 0 से 1 डिग्री सेल्सियस किया तो आपका स्पीड ऑफ साउंड 0.1 से बढ़ जाता है। दिस इज व्हाट इट एक्सप्लेन्स। 2 डिग्री सेल्सियस डालोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा टी की जगह पे, t इज इक्वल टू 3 डालोगे 3, मतलब अगर आपने 1 से बढ़ाया आपका स्पीड 0.61 से बढ़ता है। साउंड का है, समझा? Yes. समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, एक बार ये डेरिवेशन में आपके पास बस सामने कर रही हूँ, एक बार देख लो, फिर उस पर कुछ डाउट तो पूछ सकते हो। समझा भी, देखते वक्त भी डाउट आया तो पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। चीजें क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो मिस। स्टार्ट करो, रिवाइज करना स्टार्ट करो। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। PV is equals to nRT. Speed of sound is under of gamma PV by m. That is equals to under gamma RT by m. PV is nRT. N is equals to 1 मोल ले लिया, इसलिए RT by m आ गया। ठीक है? मैम यहाँ ठीक पे है नहीं यहाँ तक? शो हो रहा है, यहाँ पे खाली पूरा freeze हो रहा है। Okay, fine. कब की फ्रीज? Fine. फ्री